So I'm continuing with the last lecture. That is the morphology of what is which we were doing already. That is Plasmodium vivax as well as Plasmodium falciparum from the syllabus point of view only. So we are continuing with that only. I'm sharing my screen. You can see this. हाँ जी मैम. Okay. So according to the last lectures, which I have already completed, I had done with the life cycles of the Plasmodium falciparum, vivax, and others, and with the special reference to the life cycle in man and in mosquito only. So these were the life cycles which I have already completed. That is in the pre-erythrocytic zygogony and the erythrocytic zygogony, as well as the liver stage, the hypnocyte stage, where it is in the latent phase, and also the gametogony, how the gametes are formed and how they are further, these gametes are further transferred into the mosquitoes, and in the mosquitoes the sexual fusion of the gametes takes place, and again the life cycle continues when these sporozoites are again introduced into the human host. So this life cycle goes on until the treatment is given or until the conditions are becoming unfavorable for the mosquitoes to grow. So this human cycle was already completed, as well as the cycle in the mosquitoes, that is both the asexual as well as sexual cycles were completed in the last lecture. Then further we completed with the morphology of this Plasmodium vivax, and with special reference to all the stages. These special stages are that it is having what kind of features are in the different stages of the Plasmodium, कि जो Plasmodium है हमारा वो कौन कौन सी stages show करता है, ठीक है. So ये हमने already किया है. Then देन उसमें ये है कि हम स्मीयर्स लेते हैं और उसकी स्टेनिंग करते हैं, एंड हाउ द स्टेनिंग शोज डिफरेंट ग्रेन्यूल्स, डिफरेंट कलर्स of different stages of the Plasmodium. This we have completed. Then trophozoite stages, and उसके बारे में क्या क्या अच्छे अच्छे characteristics हैं जो हमें बहुत ही peculiar features हैं जो कि हमें लैब डायग्नोसिस में ब्लड स्मीयर्स में दिख सकते हैं. देन व्हाट how the microgametocyte and macrogametocyte are different in their visibility. उनकी अलग अलग क्या है, अलग अलग features. Now is the Plasmodium falciparum. So this is the topic where we from where we are going to start today. तो जैसे उसमें था कि विवेक्स में के जो प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनिया मीन्स के अभी एरिथ्रोसाइट में वो नहीं है एंड दे आर आउटसाइड इन द टिश्यूज और लिवर सेल्स. तो लिवर के सेल्स में ये एक सिंगल साइकिल है, ये 6 डेज के लिए होता है, एंड 6 डेज के बीच बीच में अगर तो सिम्टम्स जो प्रोड्यूस हो गए वो चेक हो गए तब ये ऐसी स्टेजेस विजिबल होंगी. अदरवाइज दे विल मूव टू द एरिथ्रोसाइटिक स्टेज. ये नहीं कि लिवर का या टिश्यूज का सेल का वो जो इसमें जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यहाँ पे खत्म नहीं होएगी. इट विल कीप ऑन इन्फेक्टिंग मोर एंड मोर लिवर सेल्स. टिश्यूज और भी बॉडी के टिश्यूज या ऑर्गन पे इन्फेक्ट करने लग जाएगा, लेकिन एरिथ्रोसाइट्स में भी ये 6 डेज के बाद मूव कर जाएगा. तो इसमें जब उसका टिश्यू का सैंपल लेके या सेल का सैंपल लेके देखा जाता है तो जो मीरोजॉइड्स हैं वो ऐसे शो होते हैं, एंड
फर्दर व्हेन दे फर्दर मैच्योर, वो सेल के अंदर इतने ज्यादा मेरोसाइट्स हो जाते हैं कि वो बर्स्ट हो जाते हैं एंड दे विल कम आउट एंड they are liberated on the 7th day of the infection. ठीक है, फिर वो आगे 7th डे के बाद वो अपने एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएंगे. So they will move into the red blood cells and then is erythrocytic साइजोगोनी. इसमें है कि एरिथ्रोसाइट्स में जैसे हमने विविक्स में पढ़ा था, उसमें ये था कि जो भी प्लाज्मोडियम विविक्स की वैरायटी है, those species are basically have more tendency to infect young RBCs. जो बहुत नए नए RBCs बने हैं बोन मैरो में या कहीं भी सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उनको वो ज्यादा इन्फेक्ट करता है. लेकिन जो फाल्सीपुरम है, ये दोनों के लिए सेम है, दोनों में ही एक जैसी ये एक्टिविटी शो करता है, दोनों को ही इन्वेड करेगा. ये एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली जो साइजोगोनी है, ये अकर होती है इन सब में, स्प्लीन में, लिवर में, बोन मैरो में. तो जो रिंग फॉर्म्स हैं, जो हमने बोला था कि जो कि एक ट्रोफोजोइट्स जो बन जाते हैं, वो हमें ब्लड में ज्यादा मिलते हैं. लेकिन अगर विवेक्स है वैरायटी, तो वो बोन मैरो वाले पोर्शन में ज्यादा मिलेगी, बिकॉज यंग RBCs आर इन द बोन मैरो. बट फैल्सीपुरम के जो सेल्स हैं, प्लाज्मोडियम की जो टाइप्स हैं, ट्रोफोजोइट्स हैं या जो भी शाइजोन्स हैं, ये सारे के सारे बोन मैरो में, जरूरी नहीं बोन मैरो में मिले, ये ब्लड में जो पेरिफेरल ब्लड घूम रहा है, चाहे वो डेड होने की स्टेज में है RBCs, चाहे वो नए हैं, चाहे इंटरमीडिएट है, वो सब में ही मिलेगा आपको फैल्सीपुरम. देन इसका साइकिल बताया हुआ है कि इतने आवर्स के लिए है. एंड इसमें एक और peculiar feature है, that is in the Plasmodium vivax what occurs के one parasite or one plasmodium infects only one RBC. एक के लिए एक ही है. लेकिन in the falciparum, Plasmodium falciparum में क्या है कि ये 2 से 6 तक पैरासाइट एक RBC के अंदर इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है, so this is also a difference between these. So how we can differentiate कि इसको जो मलेरिया हुआ है किसी भी ह्यूमन होस्ट को या किसी भी पेशेंट को, वो किसकी वजह से है, फैल्सीपुरम की वजह से है या विवेक्स की वजह से है, ये भी हमें पता लग सकता है ये वाली सारी स्टेजेस को स्टडी करने के बाद. Then is the trophozoite stage. In this the early ring form, इसकी measurement बताइए, इतने diameters होती है, and it consists of almost a fine and uniform cytoplasm. लेकिन उसमें था कि एक रिंग जो बनती है अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वो रिंग एक साइड से थिक है, एक साइड पे थिन है, एंड जो उसका न्यूक्लियस होएगा सेल का, जो प्लाज्मोडियम का, वो न्यूक्लियस एक साइड पे प्रोजेक्ट करेगा, दैट इज ऑन द थिन साइड, जो रिंग की थिन साइड है. लेकिन इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बियॉन्ड द रिंग हो जाएगा और बाहर एग्जिस्ट करेगा न्यूक्लियस रिंग के. ये अंदर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लाइक जैसे थिन या थिक साइड पे नहीं है, ये बाहर को प्रोजेक्ट कर रहा है, अटैच है इनके साथ, लेकिन ये बाहर को प्रोजेक्टेड है. सो और अच्छे अच्छे फीचर्स बताए हुए हैं कि ये एक एप्लीक बना लेता है, एक फॉर्म होती है, जैसे उसने रोजेट करके फॉर्म बताई थी, इसमें ऐसी फॉर्म होती है. इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, एंड या तो वो इकट्ठे सिचुएट करेगा या ऑपोजिट पोल पे सिचुएट करेगा. सेकेंडली, इसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स फॉर्म होते हैं, डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर. ये RBC की जब स्मीयर बनाई जाती है, उसमें ये अगर ये ग्रेन्यूल्स फाइंड होते हैं, इट मीन्स that के erythrocytic saizogony already it is going on and trophozoite stage is already there. Then जो red blood cells हैं, firstly they are unaltered type, मतलब वो पहले जब अभी trophozoite stage पे है, जिससे फर्स्ट स्टेज पे है, तब उसका साइज या उसकी शेप ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है, रेड ब्लड सेल्स का सेम ही साइज का लगेगा, लेकिन उनका कलर जो है वो रेडिश वॉयलेट होने लग जाएगा. उसमें अगर लिशमन स्टेन से अगर स्टेनिंग करेंगे, तो जो उसके अंदर इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो ब्रिक रेड कलर के स्टेन होने लग जाएंगे. एंड जैसे प्लाज्मोडियम विविक्स में ये वाले ग्रेन्यूल शिफ्टनर डॉट
दिखती हैं इसमें नहीं होंगी। देन नेक्स्ट के शाई जॉन्ट, ये आप पढ़ सकते हो आप भी खुद भी कि क्या क्या और फीचर्स हो सकते हैं। जो मेन मेन पेक्यूलियर फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। देन इज शाई जॉन्ट स्टेज, हियर द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड वो डिवाइड होता रहेगा उसका, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, फिर बहुत सारे सेल्स बनाएगा। अब बहुत सारे सेल्स जब बन जाएंगे तो उनको हम मीरोजोइट्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें मीरोजोइट्स रोजेट की फॉर्म में ऐसे अरेंज कर लेंगे और अरेंज करने के बाद वो अपना जब बहुत सारे बन जाएंगे तब आरबीसी उसको स्टोर करके रख नहीं पाएगा और आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा। तो जितने भी मीरोजोइट्स नए बनेंगे वो दोबारा से या तो और सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर वो मीरोजोइट्स क्या कर सकते हैं, और नए आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे और वो गैमीट्स बनाएंगे। अब गेमीटोगोनी वाली स्टेज स्टार्ट हो सकती है। उसमें गेमीटोगोनी होती है तो उसमें उसके फीचर्स अलग अलग लिखे हुए थे। इसमें जो माइक्रोगेमीटोसाइट्स हैं एंड मैक्रोगेमीटोसाइट्स, उसके फीचर्स लिखे हैं कि अगर गेमीटोगोनी वाली स्टेज भी पहुंच गई एंड देन वी प्रिपेयर्ड अ स्मीयर, तो उसमें हमें कैसे दिखेगा, उसमें ऐसे ऐसे ब्लंट एंड के शेप दिखेगी माइक्रोगेमीट की। और मैक्रोगेमीट जो है दैट इज फीमेल गेमीटोसाइट, वो लॉन्गर होएगा, वो नैरो होएगा, उसके एंड भी पॉइंटेड हैं, इसमें एंड ब्लंटेड हैं। देन ये स्टेन करेगा लाइट ब्लू, दिस विल स्टेन डीप ब्लू एंड इट विल बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। बट जो मैक्रोगेमीट है वो एग्रीगेट करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, वो दूर दूर तक नहीं फैला होएगा। देन इसमें है और पॉइंट है कि प्राइमरी इन्फेक्शन में जो गेमीटोसाइट्स हैं वो 10 डेज आफ्टर थिक स्मीयर, जब हम 10 डेज के बाद वो दिखने लग जाएंगे। इसके इसके 10 डेज के बाद जब हमारा एसेक्सुअल फेज दैट इज नॉन, जो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज का पार्ट है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब हमें उसके भी 10 दिन बाद ये गेमीटोसाइट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जब इंजेक्ट किया उस मस्कीटो ने उस ह्यूमन बीइंग ने, वो स्पोरोसाइट्स इंजेक्ट किए थे, उसके 20 या 21 दिन बाद हमें गेमीटोगोनी दिखेगी। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट फीचर ये ऑलरेडी बार बार मैं बता चुकी हूँ कि इसमें जो फैल्सीपुरम है इसमें कोई भी लेटेंट स्टेज नहीं है, इट इज कम्प्लीटली एब्सेंट। तो मतलब कि इस वैरायटी से अगर मलेरिया हुआ है इस प्लाज्मोडियम से, देन उसमें कोई भी रीलैप्स का फीचर नहीं होएगा, वो दोबारा से रीअकर नहीं कर सकता अगर वो ट्रीट ऑलरेडी हो चुका है तो। Then is the last topic, that is laboratory diagnosis of malaria. So how it is detected. अब हमने उसकी लाइफ साइकिल पढ़ लिया, उसकी लाइफ साइकिल के बेस पे हमने उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ ली कि हाँ मॉर्फोलॉजी में फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस स्टेज में सेल्स कैसे दिखते हैं और किस कलर के दिखते हैं, कैसी स्टेनिंग की जाती है, कैसे कितने दिनों बाद कौन सी स्टेज दिखती है। अगर हमें ये सारी चीजें पता लग चुकी हैं देन लैबोरेटरी डायग्नोसिस इज वेरी मच इजी। ठीक है, तो हम अच्छे से डिटरमिन कर पाएंगे कि हमारा माइक्रोस्कोपिकली जो एग्जामिनेशन है वो कितने दिन पे कौन कौन से स्टेज हमें शो करता है और उस पर्सन को मलेरिया के जो सिम्टम्स है वो कब दिखने लग पड़े हैं और उसको कितने दिन हो गए हैं इसी स्टेज में। तो ये सब हमें डायग्नोस करके पता लग सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब भी ब्लड कलेक्ट किया जाता है तो वो बिना ट्रीटमेंट के कलेक्ट किया जाता है, सो दैट अगर उसको कोई एंटी मलेरियल ड्रग दे दिया तो वो तो उसकी स्टेजेस तो मरने लग जाएंगी, हमें तो दिखेगा ही नहीं वो कौन सी स्टेज पे था पर्सन और वो कौन सी कौन से सिम्टम्स किस स्टेज में दिखे हैं, ये तो हमें पता नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले ब्लड स्मीयर बनाए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद जो भी डॉक्टर है उसको एंटी मलेरियल ड्रग्स प्रोवाइड करता है। So firstly, we prepare both the smears, not only thin or not only thick, both different smears
लैब्स आर प्रिपेयर्ड, एक ब्लड सैंपल से थिक स्मीयर भी बनाते हैं, थिन स्मीयर भी बनाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो प्लाज्मोडियम के सेल्स है वो टूट जाते हैं या उसके जो सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली विजुलाइज नहीं हो सकते, या कई बारी आरबीसी भी प्रॉपर्ली शो नहीं हो पाते थिन स्मीयर में। ये बहुत फाइन होती है फिल्म, दैट्स व्हाई। अगर थिक फिल्म है तो थिक फिल्म में हमें थोड़े से क्वाइटली हम एक तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं थिक फिल्म में कि पैरासाइट क्विकली देख सकते हैं कि है कि नहीं है। अगर है, हमें पता लग जाए कि दिख रहा है कुछ ना कुछ, तो फिर हम थिन स्मीयर भी बनाते हैं। एंड थिन स्मीयर के साथ उसकी थिन स्मीयर में ये होएगा कि जितने भी ज्यादा अगर पैरासाइट्स ज्यादा थे तो वो थिक में दिखने लग जाएंगे, अगर कम भी थे तो भी थिक में दिखेंगे। लेकिन अगर ज्यादा हैं तो उनको स्टडी करने के लिए हमें थिन स्मीयर में अच्छे से उनकी विजुअलाइज ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। थिक में हम उसको प्रॉपरली मॉर्फोलॉजिकली उसको पढ़ नहीं पाएंगे, सिर्फ थिक में इतना पता लग जाएगा कि कितने हैं, है भी कि नहीं है। ठीक है। So after that, after the preparation of the smears, then anti-malarial drugs can be given. So this figure is showing कि किसी को मलेरिया हुआ है तो उस पर्सन का उन्होंने सैंपल लिया, पेरिफेरल ब्लड में उन्होंने देखा कि शाइजोगोनी और गेमिटोगोनी दोनों दिख रही है। तो देन ये अगर कलर्ड होती तो थोड़ा ज्यादा बेटर पता लग सकता था, लेकिन इसमें जो ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे सेल्स और यहाँ पे, दीज आर नॉट दैट, ये तो आपके WBC या RBC WBC होंगे जिनको आपको जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं या न्यूट्रोफिल्स या बेसिकल्स ऐसे वाले होते हैं, ये नहीं आप बोल रहे, बट दीज थिंग्स they are clearly showing. And this thing you can see in this figure, this is a ring stage बनी हुई है गोल सी, उसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक साइड पे लगा हुआ है, और ये है थिक साइड एंड दिस इज द थिन साइड। यहाँ पे एक रिंग फॉर्म बनी हुई है विच कैन बी इजीली सीन। ठीक है। और ये जो है ये दिख रहे हैं कि मे बी गेमिटोगोनी की स्टेज है, दैट इज नॉट मच मोर प्रॉपरली विजुअलाइज्ड। ये जो होते हैं डायग्नोस्टिक और हिस्टोपैथोलॉजिस्ट पीपल, दे कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन एंड विद एक्सपीरियंस दे कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी स्टेज है, कैसे है। So in the well-stained film, the parasites are, if they are very much in number, अगर बहुत ज्यादा नंबर है तो वो species ही easily identify हो सकती है। and उसकी रिंग फॉर्म जो है वो तो इजीली ही दिख जाएगी, जैसे अभी मैंने आपको शो किया है। अगर हम फ्लोरेसेंट स्टेनिंग करते हैं तब हमें फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उसके साथ अट्रैक्ट करते हैं, वो उसके साथ लिंक कर जाएंगे और फिर वो फ्लोरेसेंस शो करेंगे ओनली अंडर, if we visualize under a fluorescent microscope. Then there are some methods in diagnosis. One is the cultural examination. These all are the lab diagnosis. Cultural examination करते हैं, but ये इतनी ज्यादा मतलब इजी टेक्निक नहीं है कि उसको कल्चर किया जाए, तो इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ट्रोफोजोइट स्टेज जो विविक्स की है और फैल्सिपुरम की है, उन दोनों को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। देन ब्लड काउंट इज ऑल्सो वेरी ऑफ वेरी लेस इम्पोर्टेंस, क्योंकि ब्लड काउंट तो बाकी भी बहुत सारे डिजीजेस हैं जिनमें ये इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि अगर तो अगर हमारे WBC ज्यादा होंगे तो इट मीन्स इट इंडिकेट्स कि बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ है, एंड इम्यूनिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि बॉडी में कोई ना कोई डिजीज है। और सेकेंडली उसमें अगर RBCs वो हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट इनसाइड देम, देन पता लग सकता है कि RBCs कोई को जो भी पैरासाइट है वो खराब कर रहा है।
ठीक है, तो आरबीसीज का नंबर कम होने लग जाएगा। एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में है कि उसमें इम्यूनोलॉजिकल पैरामीटर्स लगते हैं कि एंटीबॉडी की डिटेक्शन करनी है और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी या एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट लगाने हैं। वो फैल्सीपुरम या विविक्स के फीचर्स पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन से डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाएंगे। फिर वो उस अगर वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बॉडी में बनी है तो वो स्पेसिफिकली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको प्लाज्मोडियम विविक्स की इन्फेक्शन है या फाल्सीपुरम की है या मलेरिया की है या ओवेल की है। So that will depend upon the type or the specificity of the antibody which is present in the patient. Then immunofluorescence test, ये मैंने अभी बताया ही है कि इसमें फ्लोरेसेंट डाई यूज करते हैं and that dye is basically conjugated to the antibody और वो antibody उसके साथ एंटीजन के साथ बाइंड करेगा and again it can be visualized under the fluorescent microscope. फिर है जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, दीज ऑल आर द इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट ओनली, जिसमें हम एलाइजा लगाते हैं, दैट इज enzyme linked immunosorbent assay. Here the antibody is labeled with the enzyme and then the patient's serum is detected. तो उसमें ये देखा जाता है कि पहले एक लेयर बनाते हैं एंटीजन की जो बाहर प्रेजेंट है लैब में। सपोज फैल्सीपुरम का एक लेयर लगा दी, ठीक है, एक लेयर हमने नीचे बेस को अटैच कर दी, एक सपोज एक वेल ले ली, वेल जैसा या टेस्ट ट्यूब जैसा एक होती है चीज, तो वो हमने ले लिया, उसके बीच में हमने अपनी एंटीजन डाल दिया बाहर से। सपोज इट्स फॉर फैल्सीपुरम ओनली। एंटीजन मतलब कि वो सेल्स का कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होता है कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये वाला फीचर है फैल्सीपुरम के, वो हमने अटैच करवा दिया सपोज। देन उसके बीच में हमने पेशेंट का सीरम डाला। अगर उसके बीच में उस पेशेंट को फैल्सीपुरम से इन्फेक्शन हुआ है देन उसके बॉडी में एंटीबॉडीज होंगी, उसके स्पेसिफिक होंगी, तो वो अटैच कर जाएगा। देन हम वॉशिंग वगैरह देते हैं, उसके बाद फिर से एक एंटीबॉडी डालते हैं जो कि ऑलरेडी एंजाइम के साथ लिंक्ड है और वो एंटीबॉडी उस पेशेंट की सीरम के एंटीबॉडी के साथ जुड़ सकती है, वो उसके लिए स्पेसिफिक बनाई जाती है, ठीक है। अब वो बना डाल दी, फिर उसके बाद एक सबस्ट्रेट डाला जाता है जो कि अनकलर्ड होता है। कोई भी सबस्ट्रेट डालेंगे तो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को एक कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। so that colored product will give us an indication कि इसमें फैल्सीपुरम की ही इन्फेक्शन थी, किसी और की नहीं थी, ठीक है। अगर विवेक्स चेक करना है तो भी ऐसे करेंगे। तो इस टाइप के ही टेस्ट होते हैं ये सारे। जो जेल डिफ्यूजन टेस्ट होता है वो होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी की प्रेसिपिटेशन लाइंस बन जाती हैं एग्रोस जेल के अंदर। तो एक साइड पे एंटीजन सैंपल डालते हैं, दूसरी साइड पे एंटीबॉडी सैंपल, मतलब कि उसमें हम सीरम सैंपल डालेंगे पेशेंट का। तो अगर वो डिफ्यूज करके आपस में इंटरेक्ट करेगा तो एक स्पेसिफिक लाइन बन जाएगी जो कि विजिबल होएगी हमारी आईज को, नेकेड आईज में डायरेक्टली विजिबल हो जाएगी। देन विद द प्रोग्रेस इन दिस रिसर्च वगैरह में प्रोग्रेस होने की वजह से और भी बहुत सारी टेक्निक्स बन गई हैं आजकल, जैसे कोरोना वायरस की डिटेक्शन के लिए आरटीपीसीआर बोलते हैं। ऐसे ही अगर फैल्सीपुरम है या विवेक्स है, कोई भी है प्लाज्मोडियम के, उसके डीएनए के प्रोब बन गए हैं आजकल। तो डायरेक्टली ही हम सैंपल से कुछ भी लेके डायरेक्टली उसका डीएनए एनालिसिस करके ये बता सकते हैं कि मलेरिया किस की वजह से हुआ है और हुआ भी है कि नहीं हुआ। देन ऐसे ही रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक बन चुकी है, जिसमें जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए एक यूरिन स्ट्रिप के थ्रू ही डायरेक्ट डिटेक्ट हो जाता है कि है कि नहीं। ऐसे ही एक टेस्ट स्ट्रिप टेस्ट है जिसमें हम एंटीबॉडी की डिटेक्शन कर सकते हैं दो एंटीजन के साथ। वो अलग अलग ऐसे सैंपल्स हैं, वो एक स्ट्रिप के साथ लगाए होते हैं, स्ट्रिप के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो ये रैपिडली डिटेक्ट कर लेता है टेस्ट के। ये कमर्शियली अवेलेबल होती हैं एंड भी रैपिडली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा फैल्सीपुरम है या विवेक्स की वजह से, किसकी वजह से ये हुआ है। देन इज द बायोप्सी एज वेल।
तो हम लास्ट स्टेज के बायोप्सी कर सकते हैं, दैट इज बोन मैरो की बायोप्सी कर ले, लिवर की बायोप्सी कर ले, कहीं भी किसी भी ऑर्गन पे अगर इफेक्ट है किसी भी चीज का तो हम उसकी बायोप्सी करते हैं। तो अगर बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे तो ये हमें पता लग जाएगा कि बोन मैरो के जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें किस पैरासाइट से इन्फेक्शन हुई है। भाई ये इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट फिर भी टेक्निक्स तो बनी है, कोई ना कोई डायग्नोसिस की टेक्निक तो बनी है, किसी ने बनाई है और रिसर्च कर करके नई से नई बनती रहती हैं। ठीक है, सो इतना ही था आपका कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट यू पीपल माइट बी नोइंग कि इसकी ट्रीटमेंट वैसे भी आजकल काफी नए नए ड्रग्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो एक क्लोरोक्विन आपने सुना होगा, क्विनीन क्विनीन बोलते हैं उसको, वो तो बहुत ही फेमस रही है इन दी एंशियंट टाइम्स एज वेल। उसके अलावा और भी बहुत सारे क्योर्स हैं, बहुत सारी दवाइयां आ चुकी हैं जो कि इस मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस लेक्चर वाज टिल दिस थिंग ओनली कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। So I think now it's clear to you people. You can listen to the last two videos of the same topic. एक में लाइफ साइकिल स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन दी थी, एंड सेकेंड लेक्चर वाज रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल इन मस्किटो एंड द मॉर्फोलॉजी. And today we completed with the morphology, the pending morphology part and the lab diagnosis. Okay, so with this your this unit is complete.